موٹر سائیکل چلانے پر ہی پابندی لگائی گئی ہے۔ ملک بھر میں نویں محرم الحرام کے حوالے سے جلوس اور مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور انہی جلوس اور مجالس کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر کے شہروں میں جن میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہر شامل ہیں، کئی ایسے شہر ہیں جہاں پر ڈبل سواری پر ہی پابندی لگا دی گئی ہے اور کئی ایسے بھی علاقے بتائے جا رہے ہیں جہاں پر موبائل فون سروس بند کی گئی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں آج نویں محرم الحرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور ان جلوسوں کے ساتھ ساتھ مختلف امام بارگاہوں اور مختلف مقامات پر مجالس عزا کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ عزاداروں کی جانب سے سینہ کو بھی کی جا رہی ہے، نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے، ماتم دری کی جا رہی ہے اور کئی مقامات پر زنجیر زنی بھی کی جا رہی ہے۔ جلوس کے راستوں میں سبیلیں اور لنگر کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ عزاداروں کی جانب سے پرسہ پیش کیا جا رہا ہے اور عزادار مختلف مقامات پر نوحہ خوانی، ماتم دری اور زنجیر زنی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی ہے اور آج کئی شہروں میں موبائل فون سروس بھی بند رہے گی۔ آپ کو بتائیں کہ یوم عاشور پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے آج اور کل کئی شہروں میں موبائل سروس بھی معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ لاہور میں نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس جین مندر سے واپس پانڈو اسٹریٹ آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، میاں آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف، یہ بتائیے گا اس موقع پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی، 9 محرم الحرام کے سلسلے میں مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ کرشن نگر سے برآمد ہو چکا ہے۔ صبح 9 بجے کے قریب جلوس برآمد ہوا۔ اس سے پہلے ایک مجلس عزا جاری رہی جس میں بڑی تعداد میں خواتین، مرد، بچے سب لوگ شامل تھے۔ جیسے ہی مجلس عزا ختم ہوئی، جلوس برآمد ہوا، زنجیر زنی شروع کر دی عزاداروں نے، ماتم کا سلسلہ جاری ہے۔ زیارات اٹھا رکھی ہیں جو اس جلوس کے شرکاء ہیں، انہوں نے شبیہ الجناح جلوس میں شامل ہے۔ بڑی تعداد میں بچے بھی اس جلوس میں موجود ہیں، عورتوں کی بڑی تعداد یہاں پر سڑک کے دونوں طرف موجود ہے۔ جلوس بالکل دھیمے دھیمے بڑی مختصر رفتار کے ساتھ چلتا ہوا اپنے منزل کی جانب گامزن ہے۔ راستے میں جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی ہیں، پانی کی سبیلیں ہیں، دودھ کی سبیلیں ہیں، نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے اور خصوصی طور پر اس دفعہ باقاعدہ سائیڈوں پر لوگوں کو بٹھا کر نیاز پلانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ چائے موجود ہے، اس طرح کی کافی چیزیں موجود ہیں تاکہ جو شرکاء جلوس ہیں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ سیکورٹی کے بھی کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر 2000 کے قریب پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس دفعہ ایک نئی بات یہ ہوئی ہے کہ ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جلوس کی، اور ڈی آئی جی حیدر اشرف جنہوں نے یہاں پر دورہ کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جدید ترین ذرائع سے بھی جلوس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ جلوس کے راستے میں پڑنے والی 70 کے قریب جو گلیاں ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ 400 دکانیں جلوس کے راستے میں بند کروائی گئی ہیں۔ تو جلوس شام میں مغرب کے وقت جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ بڑی تعداد میں جو شرکاء ہیں موجود ہیں، لوگوں کی تعداد آ رہی ہے، لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ وقفے سے لوگوں کے واپس جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن دن بھر یہ آنے اور جانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، زنجیر زنی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، ماتم بھی ہوتا رہے گا، نوحے اور مرثیے بھی پڑھے جاتے رہیں گے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ لاہور میں نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ ہو کر روایتی راستوں پر اس وقت رواں دواں ہیں۔ شکریہ میاں آصف، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ بتائیں کہ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شامل ہے اور اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے راستوں پر نظر و نیاز اور سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، لاہور میں نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔
जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शामिल है और लाहौर का ये जुलूस है जो कि 9वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से निकाला गया है। लाहौर में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शामिल है जिन्होंने अलम उठा रखे हैं और सीना कोबी के अलावा जंजीर जनी भी कर रहे हैं। मरकजी जुलूस में शबीह जुलजना के हमरा अज़ादार जुलूस के रवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। जुलूस में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक है। जुलूस के रास्तों में पानी और दूध की सबिलें लगाई गई हैं, जबकि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात है। जुलूस की खुफिया कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अब्दाली चौक, सिविल सेक्रेटेरिएट, अनारकली और जैन मंदिर से होता हुआ रात गेप पांडू स्ट्रीट वापस पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। शोहदाए करबला की याद में मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9वीं मुहर्रमुल हराम के अलमोजुलजना और ताजिया के जुलूस बरामद हो रहे हैं। आज़ादारान हुसैन, नोहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी करते हुए शोहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। कभी कहीं न तेरा सर झुका, बुलंद था बुलंद ये सर रहा, हुसैन इज्जतों का बादशाह। जिंदाबाद या हुसैन। 9वीं मुहर्रम के जुलूस की मजलिस अज़ान निश्तर पार्क में मुनक्किद की जाएगी, जिससे मारूफ आलमेदीन अल्लामा तालिब जोहरी खिताब करेंगे। मजलिस के इख्तिताम के बाद दोपहर 1 बजे मरकजी जुलूस बरामद होगा, जिसके शुरका नमाज़े ज़ोहरैन 2 बजे एम.ए. जिना रोड पर इमाम बारगाह अली रजा के सामने अदा करेंगे। नहीं है कोई मौत का खतर, हुसैन जब हमारा हम सफर, अजल मिलाए हमसे क्या नजर। मरकजी जुलूस नुमाइश चुरंगी, सी ब्रिज, एम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक, तिब्बत सेंटर, रेडियो पाकिस्तान, बोल्टन मार्केट और लाइट हाउस से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4000 पुलिस एहलकार और रेंजर्स के 1000 से ज्यादा एहलकार जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इंतजामिया ने जुलूस के रूट पर गलियों को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है, जबकि जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के लिए मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और 26 शहरों में आज और कल मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। बहावलपुर, विहाड़ी, नारोवाल, मियांवाली, फैसलाबाद, मुल्तान, ननकाना, फैरोज़वाला, हाफिज़ाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी डबल सवारी पर आज और कल पाबंदी है। सिंध में हैदराबाद और सक्खर डिवीजन में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। कुर्रम एजेंसी में भी आज और कल मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद रखने का फैसला किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। पेशावर में भी मोटरसाइकिल पर डबल सवारी करने पर पाबंदी आयद है। मुल्क भर में 9वें मुहर्रम के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के रास्तों को सील किया गया है, जबकि शुरका को चेकिंग के बाद जुलूसों में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से जुलूसों की निगरानी भी की जा रही है। इनकी करबला मंजिल है हथेलियों पर, दिल झेल कर हर एक मुश्किल, एक सदा लबों पर है तेरा गम रहे आबाद है हुसैन जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद। मुल्क भर में शोहदाए करबला से अकीदत के इजहार के लिए मजलिसों और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, सक्खर, रोहड़ी और डेरा गाजी खान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए मजालिस, सोज़खानी और अज़ादारी का सिलसिला जारी है।
ज़ाकिरीन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके साथियों पर ढाए जाने वाले मजालिम और मसाइब मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं, मजालिस अज़ा बपा की जा रही हैं। आप बताइए, इमाम बारगाह असनी अशरा से जो जुलूस बरामद होगा 1 बजे, इसके रास्तों के हवाले से बताइए, रूट क्या होगा, और इस जुलूस के हवाले से बताएं कि सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं। जी बिल्कुल उसामा, इस्लामाबाद में जो मरकज़ी जुलूस है नवी मुहर्रम की मुनासबत से G62 मरकज़ी इमाम बारगाह असना अशरी जिस वक्त मौजूद हूँ मैं, यहाँ से बरामद होगा नमाज ज़ोहरैन के बाद 1:30 बजे का टाइम है, यहाँ से वो बरामद होगा और जो इजाज़तनामे के मुताबिक 6:30 बजे अख्ताम पजीर होना है, लेकिन ये 6:30 बजे मुश्किल ही होता है, हर साल टाइम कम होता है, ये 9 और 10 के दरमियान अख्ताम पजीर होता है। यहाँ से ये बरामद होगा मरकज़ी इमाम बारगाह से और थोड़ा सा आगे जाएगा लाल क्वार्टर के मुकाम पर। यहाँ पर जो अज़ादार हैं वो जंजीर जनी करेंगे, उनके लिए वहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं और लाल क्वार्टर से ये जुलूस रवां दवा होगा G62 स्टाफ की जानिब, एक मरतबा फिर वहाँ पर जंजीर जनी होगी। उसके बाद G62 से ये जुलूस जो है रवायती रास्तों से होता हुआ 1-2 स्टॉप की तरफ जाएगा। तकरीबन असर की नमाज का वक्त हो चुका होगा। उसके बाद 1-2 स्टॉप से ये मेलोडी चौक में जाएगा, नमाज मगरिबैन वहाँ पर अदा की जाएगी और मेलोडी चौक से होता हुआ ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल से दोबारा जब ये इमाम बारगाह आएगा 9 और 10 के दरमियान, इसी इमाम बारगाह में वो अख्ताम पजीर होगा और सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सरकारी इमारतें, इसके अलावा जो रहायशी इलाका है, इनकी छतों पर भी पुलिस वाले एहलकार तैनात किए गए हैं और इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने जो ब्लू एरिया का मकाम है, इनकी छतों पर भी पुलिस जो एहलकार हैं, शूटर जो हैं, स्नाइप शूटर, वो भी तैनात किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। तकरीबन 3500 के करीब जो हैं सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। फ़ौज को स्टैंड बाई रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर इमाम बारगाह की इंतज़ामिया के जो अपने जो स्काउट्स हैं वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ वॉक थ्रू गेट के अलावा वो लेडीज़ और जेंट्स का जो रास्ते हैं वहाँ पर वो तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम रेहान शेख आप बता रहे किए गए हैं। ये बताइए कि उमूमन जो मरकज़ी जुलूस होते हैं 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से, उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप आपने देखा? जी बिल्कुल उसामा, यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं और उनमें अनगिनत किस्म की मेडिकल हैं। हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट एड के लिए तमाम अद्वियात यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ास तौर पर जो मोमिनीन यहाँ पर सीना कोबी के अलावा जंजीर जनी करेंगे, अगर उनकी जो कमर पर निशान ज़ख़म हो गए तो उसको टांके लगाने के लिए वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तिब्बी पायोडीन है यहाँ के, इसके अलावा यहाँ पर ग्लूकोज की ड्रिप्स और दीगर इंजेक्शन, वैलियम, पेन किलर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर गर्मी या किसी और वजह से किसी भी जुलूस में शामिल आज़ादार की तबीयत ख़राब होती है, उनके लिए फ़र्स्ट एड का तमाम यहाँ पर सामान मौजूद है। उनके लिए स्पेशल यहाँ पर डॉक्टर भी हैं और रज़ाकाराना तौर पर जो स्काउट्स हैं वो भी यहाँ पर उसके इंतजाम किए जाएंगे। अगर किसी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है उसके लिए एम्बुलेंसेज भी हैं। एग्ज़िट गेट है, वहाँ से फ़ौरन करीबी अस्पताल की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। मेडिकल कैंप यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सबील और न्यास का जो बंदोबस्त किया गया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उस पर सख्त नज़र रखी हुई है ताकि कोई भी इस न्याज और सबील की आड़ में कोई ऐसी चीज़ ना मिला जाए। इसलिए यहाँ पर यह भी बताया गया है कि मुतलका कैंप से ही रेहान शेख, आपने इस्लामाबाद से अपडेट किया। इससे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुहर्रमुल हराम के दौरान शरपसंद अनासर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हुकूमत सिंध के कवानीन और हिदायत पर सख्ती से अमल बारगाह से बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम को G6 इमाम बारगाह में ही इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से क्योंकि इस्लामाबाद का ये मरकज़ी जुलूस है, दीगर शहरों से जो अज़ादार आते हैं वो भी इस जुलूस में शिरकत करते हैं। जो छोटे बड़े जुलूस हैं वो भी इस जुलूस में, मरकज़ी जुलूस में आकर शामिल होते हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। अगर बात करें तो 3500 पुलिस एहलकार जो हैं जुलूस की निगरानी पर तैनात किए गए हैं, ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि क्विक रिस्पांस फोर्स और रेंजर्स के 1500 एहलकार भी तैनात किए गए हैं, जबकि पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं उनको स्टैंड बाई पर रखा गया है। मेरे कब में इस वक्त आप देख सकते हैं अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त भी जुलूस में शिरकत के लिए आ रही है, जबकि स्क्वाड जो है इनके अपने जो स्क्वाड है मुहाफ़िज़ स्क्वाड वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 3 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर अज़ादारों को जामिया तलाशी के बाद
شامل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جلوس کے راستے میں آنے والے جو تمام گلیاں ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، خاردار تالے لگا کر سیل کیا گیا، جبکہ دفعہ 144 بھی اسلام آباد میں نافذ کر دی گئی ہے۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ کو جو موبائل فون سروس ہے وہ معطل کرنے کے لیے سفارش بھی کی گئی ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلوس کی آمد سے کچھ دیر قبل ہی جو موبائل فون سروس ہے وہ معطل کر دی جائے گی، جبکہ بم ڈسپوزل سکواڈ بھی یہاں پر موجود ہے۔ جلوس کے راستوں کو جلوس برآمد ہونے سے قبل جو ہے بم ڈسپوزل سکواڈ ہے جلوس کے تمام راستوں کو کلیئر کرے گا، اس کے بعد جلوس یہاں سے برآمد ہوگا۔ اگر بات کریں تو سیکیورٹی کی آج اس جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی، جبکہ انتظامیہ کی جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو خفیہ کیمرے ہیں وہ بھی نصب کیے گئے ہیں مختلف مقامات پر، اس جلوس کی لائیو مانیٹرنگ بھی کی۔ محمد اویس تفصیلات کے لیے اسلام آباد کے جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ اور اب بات کریں گے شہر قائد کی۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کے حوالے سے مرکزی جلوس نشتر پارک میں شروع ہو گئی ہے۔ مجلس سے علامہ طالب جوہری خطاب کریں گے۔ مجلس کا اختتام 1 بجے ہوگا، جس کے بعد مرکزی جلوس پاک حیدری اسکاؤٹس کی سربراہی میں نمائش چورنگی سے برآمد ہوگا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ محمد عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، یہ بتائیے گا کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح آج شہر قائد میں بھی جلوس برآمد ہو رہے ہیں، کیا تفصیلات ہیں ان جلوس کی؟ 9 محرم الحرام کے حوالے سے جو مرکزی مجلس ہے اس ٹائم نشتر پارک میں شروع ہو گئی ہے، جبکہ مجلس سے جو ہے علامہ طالب جوہری خطاب کر رہے ہیں۔ مجلس جو ہے 1 بجے تک جاری رہے گی۔ 1 بجے مجلس کے اختتام کے بعد جو ہے مین نمائش پر یہاں پر جو مرکزی جلوس پاک حیدری اسکاؤٹ کی سربراہی میں یہاں پر جو ہے برآمد ہوگا، جس کے بعد جو ہے عزاداران یہاں پر کچھ دیر کے لیے جو ہے عزاداری کریں گے، جس کے بعد یہاں پر جو جلوس اپنے مقررہ راستوں پر دوبارہ جو ہے وہ روانہ ہو جائے گا، جبکہ امام بارگاہ علی رضا پر جو ہے نماز ظہرین ادا کی جائے گی، جس کے بعد وہاں پر جو ہے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے امریکہ کا پرچم بھی نظر آتش کیا جائے گا، جبکہ جلوس جو ہے اپنے مقررہ راستوں کی طرف جو دوبارہ گامزن ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے ابھی تک مجلس کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 بجے مین نمائش پر مرکزی جلوس برآمد ہوگا، جس کے بعد یہ جلوس اپنی مقررہ راستوں کی طرف جو ہے روانہ ہو جائے گا۔ حسین ایرانیان پر یہ جا کر جلوس اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے اطراف میں جو بلند و بالا عمارتیں وہاں پر پولیس اور کمانڈوز اور رینجرز کے جو ہے ماہر نشان آباز بھی تعینات کیے گئے، جبکہ 6000 سے زائد جو ہے پولیس اور کمانڈوز تعینات کیے گئے، جبکہ 2000 سے زائد جو ہے رینجرز کے اہلکار بھی تعینات کیے ہیں، جبکہ جلوس کے اطراف میں جتنی بھی چھوٹی بڑی گلیاں ہیں ان تمام کو جو ہے کنٹینر لگا کے سیل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے مجلس جو ہے مرکزی مجلس جو شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ مجلس سے جو ہے علامہ طالب جوہری جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ 1 بجے جیسے ہی مرکزی مجلس ختم ہوگی تو جلوس جاری ہے اور جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہو۔ شکریہ محمد عرفان۔ کراچی کے جلوس کی بات کریں گے۔ کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس دوپہر 1 بجے نمائش چورنگی سے برآمد ہوگا، جو مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ راشد خان وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد، بتائیے گا کراچی کے اس مرکزی جلوس کے حوالے سے کس قسم کی تیاریاں کی گئی ہیں اور خصوصاً سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے 9 محرم حرام کے حوالے سے جو مرکزی مجلس ہے وہ اس وقت جو ہے نشتر پارک میں شروع ہونے والی ہے۔ مجلس سے جو ہے علامہ طالب جوہری خطاب کریں گے، اس کے بعد پاک حیدری اسکاؤٹ کی سربراہی میں جلوس نمائش پر برآمد ہوگا، اور نمائش یہاں سے ہوتے ہوئے 1 بجے کے قریب حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ علی رضا پہنچے گا، جہاں پر 1:30 بجے کے قریب نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ وہاں سے ہوتے ہوئے یہ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے روانہ ہوگا اور 6 بریج کے قریب صدر میں انٹر ہوگا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ریگل کے قریب سے یہ تبت سینٹر، اور وہاں سے ہوتے ہوئے دوبارہ ایم اے جنار روڈ پہ برآمد ہوگا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے یہ شام کے قریب حسینیہ ایرانیہ پہ اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے حوالے سے بتائیں کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، تمام اونچی عمارتوں پر شارپ شوٹرز تعینات کیے گئے، جبکہ جلوس کے لیے جو 2 راستے ہیں وہ بھی نمائش سے ہی ہیں، اور وہاں پر اسکینر لگائے ہوئے اور سخت چیکنگ کی جا رہی ہے، اس کے بعد ہی جلوس میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جی اچھا راشد خان، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے تو آپ نے اپڈیٹ کیا، وقت کے حوالے سے بتائیے کہ کیا انتظامیہ کی جانب سے کچھ مقرر کردہ وقت بھی دیے گئے ہیں کہ اس وقت کے اندر تمام تر جو جلوس ہیں یا مجالس ہیں وہ اختتام پذیر ہو جانی چاہیے؟
जी बिल्कुल, वक्त तो दिए जाते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी मामलात और जुलूस की नफरी के हवाले से कि जुलूस में कितने लोग शरीक है, अगर जुलूस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो लाजमन वो उसका टाइम बढ़ता है और जो मुकर्ररा वक्त है वहाँ पर या वक्त से पहले पहुँचा जाता है या वक्त से बाद ही पहुँचा जाता है। अब जुलूस पर है कि जुलूस कितना बड़ा होगा, अगर जुलूस बड़ा होता है तो उसके बहुत लेट पहुँचा जाता है। जी शुक्रिया आपका राशिद खान, अपडेट कर रहे थे आप कराची के इस मरकजी जुलूस के हवाले से। 1 बजे बरामद और इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची की ही मजीद बात करेंगे। कराची में 9वीं मुहर्रम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेडी पुलिस, कमांडोज और रेंजर्स के अलावा मुख्तलिफ स्काउट्स के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोनिस सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, अपडेट कीजिएगा। 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, कराची में 9 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से निकाले जाने वाला जो मरकज़ी जुलूस है वो अब से कुछ देर बाद नशर पार्क से जो है वो बरामद होगा। इस वक्त मजलिस अज़ा जो है वहाँ पर बर्पा की जा रही है। उसके बाद जो है ये जुलूस जो है नशर पार्क से बरामद होता हुआ नुमाइश चौरंगी पहुँचेगा और नुमाइश चौरंगी से जुलूस जो है वो आगे की जानिब बढ़ेगा और इमाम बारगाह अली रज़ा के मकाम पर जो है वो नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, जिसके बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुँच कर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से आपको बताऊँ कि सिक्योरिटी के जो है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं 9 मुहर्रमुल हराम की जुलूस के हवाले से और तकरीबन 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर जो है वो मामूर हैं आज कराची में, जबकि इसके अलावा 2000 से ज़ायद रेंजर्स के अफसरान और एहलकार जो हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ स्काउट्स के दस्ते भी जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको बता दूँ कि सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मखसूस मकामात ऐसे हैं जहाँ से जो है वो दाखिली व खारजी रास्ते हैं जो जुलूस के, और जामिया तलाशी के बाद जो अज़ादार हैं जो जुलूस के शुरका हैं उनको जो है वो जामिया तलाशी के बाद जो है अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड के भी जो है वो 4 टीमें इस वक्त कराची के जो मरकजी जुलूस है उसकी सिक्योरिटी के लिए मामूर हैं। एक बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो जुलूस के अगले हिस्से पर, एक जो है वो पिछले हिस्से पर, जबकि 2 बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची के छोटे बड़े जुलूसों के हवाले से आपको अपडेट किया। पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में 9वीं मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में शहर में 10 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। हसास शहर होने के बाद सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। खालिद रहमान वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, पेशावर एक हसास तरीन शहर है और यकीनन सिक्योरिटी सख्त होगी, तफसीलात दीजिए, क्या बंदोबस्त किए गए हैं 9वीं मुहर्रम के जुलूस के हवाले से? जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम के सिलसिले में आज पेशावर भर से तकरीबन मुख्तलिफ मकामात से 10 से ज़ायद छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद होंगे जो कि अपने रिवायती रास्तों से अपने मुकर्रर करदा मकामात पर इख्तिताम पजीर होंगे और इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर लिए गए हैं। इस वक्त हम किस्साखानी बाज़ार में मौजूद हैं जो कि अंदरूनी शहर का इलाका है और इस इलाके को सबसे ज़्यादा हसास समझा जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि अंदरूनी शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जो यहाँ के रास्ते हैं वहाँ पर कन्नाते और बैरियर्स लगाए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि शहर में दाखिल होने वाले तमाम अफराद पर खसूसी तौर पर नजर रख रहे हैं। और इसके साथ साथ आज से अफगान महाजरीन की आमद पर भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब आज जिला भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र जिला भर में तकरीबन 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात है, जबकि हसास मकामात पर एफसी के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो शहर के दाखिली व खारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी जदीद असलहे से लैस पुलिस एहलकारों को तैनात पुलिस एहलकार तैनात हैं। हसास मकामात पर एफसी के एहलकार भी तैनात गए हैं। शुक्रिया आपका खालिद तफसीलात के लिए। सियालकोट में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस मकान सादिक हुसैन शाह से बरामद होकर इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा पसरूरियां पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। यौम आशूरा के लिए पुलिस ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं और जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान सयाल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ये बताइएगा कि मुल्क के दीगर शहरों में आज 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। सियालकोट से क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, सियालकोट ज़िला भर में 331 से ज़ायद जो मरकज़ी जुलूस हैं वो मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और 1257 जो मजालस हैं वो भी मुनक़्क़द हो रही हैं। 9, 10 और मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो 40 से ज़ायद जो मजालस हैं उनको इंतहाई सास और जो 69 के करीब जो जुलूस हैं उनको इंतहाई सास करार दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 3000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार है उनको जुलूस के मरकज़ी रास्तों पर मुनक़्क़द किया गया है, तैनात किया गया है। और इसके जिस पर सिक्योरिटी के साथ साथ जो रज़ाकारान है वो भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और जो जुलूस के मरकज़ी रास्ते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए हैं और वॉक थ्रू गेट्स और जो जुलूस के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे जामे तलाशी के बाद उनको दाखिल होने दिया जा रहा है। और DPO सियालकोट के मुताबिक जो है ना वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और जो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 10 मुहर्रम हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो अड्डा पसूड़िया दर बतूल से जो है कल सुबह 10 बजे बरामद होगा। और अगर इंतज़ामिया के मुताबिक जो जुलूस के मरकज़ी दुकानें हैं उनको हम साथ साथ बंद करवाते जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि कुछ दुकानें जो है अभी भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। डबल सवारी पर पाबंदी है। शुक्रिया इमरान आप किया। नाज़रीन, सियालकोट के बाद सरगोधा की बात करेंगे। सरगोधा में 9 मुहर्रम के सिलसिला में मरकजी जुलूस शाम 4 बजे बरामद होगा। इस सिलसिले में सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जुलूस की गुजरगाहों को सील कर दिया गया है। उस्मान शेख वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं। उस्मान, मरकजी जुलूस सरगोधा का 4 बजे बरामद होगा। इंतजामात के हवाले से बताइए, कैसे इंतजामात किए गए इस मरकजी जुलूस के हवाले से? जी बिल्कुल, 9वीं मुहर्रम के हवाले से सरगोधा के अंदर इस वक्त जो है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। और शहर का जो आज मरकज़ी जुलूस है वो ब्लॉक नंबर 23 से बरामद होगा और तकरीबन शाम 4 बजे ज़ोरैन के बाद शाम 4 बजे के करीब जो है अपने मुकर्रर रास्ते से होते हुए जो है ब्लॉक नंबर 7 में इख्तिताम पजीर होगा। इसके बाद जो दूसरा जुलूस है वो तकरीबन रात के 2 बजे के करीब शराजी मंजिल से बरामद होगा और तकरीबन फजर के बाद जो है मुकर्रर रास्ते से होते हुए ब्लॉक नंबर 19 में इख्तिताम होगा। इस हवाले से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जितने भी जुलूस के जो रास्ते हैं उनके जो है खाकदार तारों से बंद किया गया हुआ है और इसकी निगरानी के लिए CCTV जो कैमरे हैं वो भी नफज किए गए हैं। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 900 से ज़ायद एहलकार जो है सिक्योरिटी के वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं पुलिस की जानिब से। इसके अलावा स्काउट भी जो है वो फर्दर